feels great to receive this cute award for being a cute couple on TV. And thank you, Vishal, thank you, Habib, and thank you, PIA, for honoring us with that. And then standing next to Simran, who is a great MC. And of course, the legendary Sir, जिन्हें कौन नहीं जानता है. तो to share the stage with you is it's an honor. And congratulations to everyone here who is receiving an award in the evening today. And have a great evening ahead. Thank you for honoring us. No, we've got to hear from Nisha. I know you're getting late. आपकी खूबसूरत आवाज़ हम कैसे ना सुने? Thank you, Simran, for your kind words and welcoming us. I just want to say that this is the first time we've stepped out of the house for an award function since the pandemic. So that feels great because तैयार होकर एक award function के लिए ready आना होना was itself an event. And I feel great whenever I do any kind of project with Karan. So that is another thing that's special. And there are so many special things here this evening. Simran, wherever I go, Simran's always there, beautifully decorating the evening with her beautiful words. And Habib, thank you for having us. Ismail Darbarji for making this evening so beautiful by sharing so many moments. And my dear friend Vishal, I have known you for a long time and I'm so happy you've come such a long way. So thank you everybody. ऐसे नहीं जाने देंगे. You have to sing 2 lines, brother. अच्छा वो गाने वाली जो भी गाए या कितने क्यूट कपल इसलिए हमने बेस्ट जोड़ी का अवार्ड दिया है. I'm just gonna sing one line because Karan के song के लिए जो hit हुआ recently. So I'm sorry if I go completely wrong, which I'm sure I will. So here you go. बेवफा तेरा मासूम चेहरा दिल लगाने के काबिल नहीं है. खूबसूरत बहुत है तू लेकिन दिल लगाने के काबिल नहीं है. Thank you. Thank you, Nisha and Karan, for coming over. That was Thanks, like, Karan. you know, the तो आज हम उनकी वजह से यहाँ पर आए हैं और हमें अवार्ड भी दिया जा रहा है दोनों को फॉर बीइंग अ क्यूट कपल ऑन टीवी. सो वी आर हियर बेसिकली फॉर हबीब एंड वुड लाइक टू विश हिम ऑल द बेस्ट. It feels good. I think after such a long year of staying indoors, we are finally coming out for an event. So we are really excited. This is actually our first awards for which we've stepped out post the pandemic. करण, आपका जो म्यूजिक वीडियो आया था उसके बारे में कुछ बताइए. बहुत अप्रिशिएट किया गया उसको और आगे क्या क्या लोगों को देखने मिलेगा. So yeah, I think we just crossed 175 million yesterday. बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है बेवफा तेरा मासूम चेहरा को एंड इसी तरह ग्रो करता रहे. और ऐसी कुछ चीज़ें हैं इन पाइपलाइन. आई विल बी शूटिंग दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ ऑल्सो फॉर अ कपल ऑफ म्यूजिक वीडियोज़. सो
लेट्स सी आप लोगों को वो भी पसंद आएगा ज़रूर। सो बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स पे भी बहुत सारी चीज़ें हो रही है, जी। तो अब करण क्या करने वाला है, मतलब सीरियल की तरफ फिर से जाएंगे या फिर OTT से? So I'm already doing a show which is for Zee Punjabi. It's called Mawa Thaniya Chawa. अभी एक हफ्ता ही हुआ है, so कल ही रेटिंग आई है, so it's become number 1 on Zee Punjabi. And तो एक वो शो कर रहा हूँ, कुछ वेब के लिए भी कर रहा हूँ. So certain things in pipeline this year. So looking good and bright. ड्रेस के बारे में क्या बताना चाहेंगे? Sorry? आप दोनों की ड्रेस कॉम्बिनेशन के बारे में। So हमारी स्टाइलिस्ट यशस्वी जो है, तो पहले वो मुझे स्टाइल कर रही थी सिर्फ, फिर शायद इनसे बात हुई तो इनके लिए भी कुछ ला रही थी, और मुझे कुछ और पहनना था, लेकिन आई थिंक वो वार्डरोब मैलफंक्शन हो रहा था, तो देन आई एंडेड अप वेयरिंग ऑलमोस्ट द सेम कलर, सो दैट्स व्हाट वी आर वेयरिंग. थैंक यू. This side? कम. हाँ पूछिए. इस अवार्ड शो के बारे में क्या कहना चाहेंगे, पनाश इमेज अवार्ड्स 2021? पनाज का इमेज वैसे ही बहुत ज़बरदस्त है, और मैं हबीब भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ, और विशाल भाई का, जिन लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया है, और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, दुआएं हैं कि पनाज इमेज अवार्ड्स खूब ढेर सारी तरक्की करे और बड़े बड़े सुपरस्टारों को अवार्ड दे. सर, अवार्ड कितना मायने रखता है एक कलाकार के लिए? क्या बात है, क्या सवाल है. अवार्ड मायने तो सबसे ज़्यादा रखता है, क्योंकि जिस तरह आप 10th का एग्ज़ाम देते हो तो उसका रिज़ल्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना, तो आप पास हुए कि फेल हुए. तो अवार्ड मिलने से ये पता चलता है कि भाई हम पास हो गए, तो ये उतना ही इम्पोर्टेंट है कि आपके काम को वो रिस्पेक्ट मिलता है, तो आप और मेहनत करते हो. तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है भैया अवार्ड. सर, इसके अलावा जैद, आवेज, अनम तीनों बहुत अच्छा कर रहे हैं. आपका कोलैबोरेशन उनके साथ कब होने वाला है, क्योंकि फैंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि आप भी उनके साथ में आए, आपका भी कुछ मतलब इन्वॉल्वमेंट हो उनके साथ? मेरा इन्वॉल्वमेंट तो जब से पैदा हुए तब से है, और इस वक्त मैं इतना ही कहूँगा कि जिस तरह अवेज, जैद और अनम मेहनत कर रहे हैं, तो मैं उनको एक ही चीज़ गाइड करता हूँ कि बेटा कोई भी काम छोटा नहीं होता है ना. तो इस काम को तुम इतना बड़ा कर दो कि लोग तुम पर नाज करें. आज जिस तरह अवेज का नाम हुआ है, जैद का भी नाम है, अनम का भी नाम है, तो बच्चे मेरे बहुत है टैलेंटेड, और इंशाल्लाह ये तो सिर्फ ट्रेलर है. आगे आगे देखिए, आप लोग दुआ कीजिए कि मालिक उनको इससे भी बहुत बड़ी कामयाबी दे, क्योंकि उनका जो असली टैलेंट है ना, वो अभी तक सामने आया नहीं है ना. बट सबसे अच्छी बात ये है कि उन लोगों ने अपने बाप का सहारा नहीं लिया, ये बहुत अच्छी बात है, वरना उनके लिए बहुत रास्ते इजी थे, बट उन लोगों ने रास्ते बहुत कठिन चुने. अपनी मेहनत से वो लोग यहाँ तक पहुँचे. मैं बैकग्राउंड में हमेशा रहा, बट मुझे यही अच्छा लग रहा था कि वो लोग खुद कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह मैं कोशिश करके यहाँ तक पहुँचा, क्योंकि मेरा भी बैकग्राउंड कुछ नहीं था. तो उसका एक मज़ा कुछ और ही होता है जब आप खुद कुछ हासिल करते हो ना. तो मुझे खुशी इस बात की है बस कि मेरे बच्चे अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचे, और आप लोग दुआ करें बस मालिक उन लोगों को और आगे पहुँचाए और उनकी हिफाजत करें. सर, बॉलीवुड में बहुत सारी नेपोटिज्म के ऊपर बातें होती है, लेकिन आवेज ने, जैद ने पूरी उस बात को एकदम अलग तरीके से लोगों के सामने पेश किया. उसको लेके कितना प्राउड फील होता है आपको? देखिए, एक बाप के लिए तो सबसे खुशी की बात वही होती है कि उसके बच्चों के नाम से आज मुझे पहचाना जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है. आज मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि आज आप उन बच्चों के लिए मुझसे पूछ रहे हो, है ना. तो ये बहुत खुशी की बात है, और दुनिया का हर बाप चाहता होगा कि उसके बच्चों का नाम हो, लोग अपने उसके मतलब बाप, औलाद के नाम से बाप को पहचाने. तो आई एम वेरी हैप्पी, और इससे ज़्यादा मैं ऊपर वाले का क्या शुक्रिया अदा करूं. बस यही दुआ करना आप लोग कि वो लोग आगे बढ़ते जाए. थैंक यू सर. थैंक यू. ये बहुत ही खूबसूरत ये फंक्शन हो रहा है, और ख़ूबसूरत इसलिए क्योंकि होस्ट करने वाले हैंडसम आदमी हैं, और ये वीके भाई हैं, इनके एक फ़ोन पे मैं आ गया,
और बहुत ही मज़ा आ रहा है, क्योंकि कोई भी अवार्ड जब मिलता है ना, सम्मान ये होता है कि सिर्फ आपको शील्ड नहीं दिया जाए, जिस तरह से आपको बुलाया जाता है असली सम्मान वो होता है। तो जिस तरह से इन्होंने बुलाया मेरे लिए आई एम सो ग्लैड टू बी हियर एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू सो मच। PIA जो है ये इसका कद हर साल बढ़ता रहे। आफ्टर लॉकडाउन आई एम अटेंडिंग फर्स्ट अवार्ड शो, तो बहुत मज़ा आ रहा है। जो एनर्जी दिख रही है वो कमाल है और मुझे अच्छा लग रहा है ये दो लोग आगे, वरना अकेला हैंडसम आदमी क्या करता है। 2021 में क्या नया होने वाला है, क्या आपका 2021 में जो है हम 21 कर पाएंगे, क्योंकि मास्क हटने वाला है। तो 21, 2 21, 3 21 जितना करना है हम लोग कर सकते हैं, ये हो सकता है। और बिल्कुल पॉजिटिव होगा, क्योंकि पहले हमारा हाथ यहाँ रहता था 2020 में। उम्मीद करते हैं 2021 में यहाँ हो और सबको वैक्सीन लग जाए और सब लोग सुकून से रहें, सब लोग खुल के करें। क्योंकि एंटरटेनमेंट पे लॉकडाउन तो वैसे भी नहीं लगना चाहिए, एंटरटेनमेंट पे कोई पहरा नहीं लगना चाहिए, वो तो चलता रहना चाहिए। जैसे इन्होंने आज शुरू किया PIA जो है, ये इन्होंने शुभारंभ कर दिया जनवरी के महीने में, ख़त्म होने से पहले आपने शुरू कर दिया कि स्टार्ट अच्छा हो गया, तो मज़ेदार होगा। साल बहुत अच्छा जाने वाला है। आपके अंदाज में कुछ फैंस को कहना चाहेंगे? मेरे अंदाज में ये है कि दिल ना लगे तो दिल को बहलाते रहो, दिल ना लगे तो दिल को बहलाते रहो। अवार्ड पा लिया, अब वैक्सीन लगा के यहाँ सहलाते रहो। थैंक यू, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। बस मैं विशाल और हबीब को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इन्होंने ये जो ऑर्गेनाइज़ किया है PIA पिनाश इमेज अवार्ड्स, बहुत अच्छी बात है। ये अच्छा कार्य कर रहे हैं, बिकॉज यू नो दीज काइंड ऑफ थिंग्स, इवेंट्स मस्ट कीप हैपनिंग एंड इट्स अ इमेज अवार्ड, सो दे हैव इनवाइटेड मी एंड दे आर ऑनरिंग मी। आई एम ऑनर्ड, ऑल द बेस्ट टू देम। विशाल इज़ अ वेरी गुड डिज़ाइनर, दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से। 2021 शुरू हो गया, क्या रेजोल्यूशन बनाया है नए साल के लिए? वर्क वर्क एंड वर्क। एक साल जो हमारा पेंडेमिक में गया है, वी मस्ट फॉरगेट 2020 एंड 2021 वी मस्ट वर्क मोर हार्ड एंड द लॉस्ट टाइम विच वी हैव लॉस्ट, ट्राई टू वर्क मोर हार्ड एंड गिव सम अमेजिंग स्टफ टू द इंडस्ट्री। सर, आपके बेटे ने भी डेब्यू कर लिया है, हमने देखी जी, सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या टिप्स दी आपने आपके बेटे को? I've just told Siddhant that there is no shortcut to hard work. He must work hard, and hard work will always pay. So any plans to come together? Yeah, very soon we will do that. We have made a film called Sanghar the Massacre, which I have produced, which Siddhant has written. He has directed the film, and in that film I have acted in it. It's a short film. It's a 50-minute film. So Siddhant has, we two of us are acting in the film. So God willing, within a month's time, the post-production is on, and we will be releasing Sanghar the Massacre very soon. It's a film which my banner has produced, and it's basically on the Sadhu lynching, what had happened in Palghar. We are inspired by that incident, and we have made the film. It's against the Gau Hatya, और जो साधुओं की जो निर्मम हत्या हुई है उनके खिलाफ हमने ये फिल्म बनाई है। सो उम्मीद है लोगों को पसंद आएगी। पीपल विल लव द फिल्म एंड दैट्स इट। थैंक यू एवरीवन। खैर ओके, सो मुझे ये अवार्ड मिला है फॉर मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्ट्रेस ऑफ द ईयर, और सबसे मेरी सौभाग्य की बात है कि इस्माइल दरबार साहब जी ने ये अवार्ड से मुझे नवाजा है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी खुशकिस्मती की बात कुछ हो सकती है। एंड आई रियली वुड लाइक टू विश विशाल कपूर ऑल द बेस्ट फॉर हिज फ्यूचर, एंड थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे इस अवार्ड से नवाजा। हम जैसे आर्टिस्टों को ये जो अवार्ड्स होते हैं ना, ये बहुत एनकरेज करते हैं कि हम आगे बढ़ें और अच्छे अच्छे काम करें, और हमारे फैंस के लिए हम कुछ ना कुछ नया लेते आए। थैंक यू सो मच विशाल, PIA, एंड यस, दिस इज़ माई ब्लैक लेडी। थैंक अबाउट द इनिशिएटिव एंड अबाउट विशाल जी एंड अबाउट हबीब सर जिन्होंने ये कदम उठाया, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? पनाश, व्हाट इज़ पनाश? पनाश, द कॉन्फिडेंस इन स्टाइल। सो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है विशाल कपूर जी का, और उन्होंने मुझे बुलाया। Being here today is a wonderful experience, and I wish very success for this program. मैं तो यही कहना चाहूँगा छोटे से शब्दों में, कलाकारी की तलाश में मिला हमें पनाश, कलाकारी की तलाश में मिला हमें पनाश,
चेहरे पर है आत्मविश्वास, चेहरे पर है आत्मविश्वास, विशाल के प्रकाश से जल उठा आकाश, विशाल कपूर जी के प्रकाश से जल उठा आकाश। थैंक्स पनाश, थैंक्स विशाल कपूर, थैंक्स हबीब जी, थैंक यू मेरे मित्र हफीज़ बेग साहब औरंगाबाद से, और सबको शुभकामनाएं, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं यहाँ पे और जितने भी उनके साथ में उनके जो भी मेंबर्स हैं, और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Dedicated show of 2021. More than show, I call it absolutely a spectacular vision by VK Vishal Kapoor. Absolutely an honor to be in his collection for the Panache runway. And ladies and gentlemen, for the prestigious Panache Image Awards 2021. I want to take this opportunity of inviting my dear friend Habib here for allowing me to be a part of this most magnificent show by Vishal Kapoor. It's always about sophistication, absolutely personified. When it's VK, unki collection se lekar, the way he carries on with his shows, it's always that awesomeness जो वो सब लोगों को देते हैं. At the same time, जो रनवे पे वो ग्लैम लाते हैं, it's only by the Vishal Kapoor collection. Absolutely an honor for me to be here. इसके अलावा पहली बार लाइफ में ऐसा मौका मिला है जहाँ पर सारे क्वींस आने वाले हैं, and they are here presenting these awards to all the beauty queens over the years. So I think this is one phenomenal event altogether. Thank you very much to all the lovely friends from the media. Thank you, Simran. Habib, Yes. Habib sir, Yeah. something about yourself and about the Panache Image Award. What was the inspiration and how it's different from other awards as such? सी पनाश बेसिकली अवार्ड्स जो है यहाँ पे हम पार एक्सीलेंसी का अवार्ड्स देते हैं। यहाँ पे कोई नंबर 1 शो नहीं है, नंबर 1 एक्टर नहीं है, हमारे लिए सब बेस्ट होते हैं। इसलिए हमारा जो टैगलाइन होता है इट्स पार एक्सीलेंस, मींस अपनी फील्ड में उन्होंने बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है, इसलिए हम उनको अवार्ड से नवाजते हैं। और जो हमारा क्वींस है इसमें भी हमारा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 नहीं रहती है। क्वींस बेसिकली कोई स्टेट से है, कोई सिटी से है। सो ये जो कंसेप्ट है ये बहुत ही यूनिक है हमारे देश के अंदर, कि जहाँ पे हमारी जो क्वींस है जिनको लोग अक्सर भूल जाते हैं साल 2 साल के बाद, जैसे कोई मिस महाराष्ट्र हो गई, मिस दिल्ली हो गई, मिस मुंबई हो गई, तो साल 2 साल के बाद सब भूल जाते हैं। सो वी एंड एट पनाश वी रिमेंबर दिस क्वींस एंड वी गिव देम अ डिग्नेटरी वॉक। आप देखेंगे कि उनको एक गोल्डन ट्रॉफी से नवाजा जाएगा, एक डिग्नेटरी वॉक करेंगे, और उसके बाद ये शो आप जैसे देखेंगे इट विल बी वंडरफुल सक्सेस। एंड यस, इसके बीच में हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर्स भी आएंगे एंड हमारे जजेस भी रहेंगे। एंड यस सर, यस। और अभी हमारे जो बोर्ड मेंबर है, बोर्ड मेंबर में मैं आपको मिलाना चाहूँगा जाफ़र पीरज़ादा भाई से, जो कि एक सक्सेसफुल बोर्ड मेंबर है सिंस लास्ट 3 years विद पनाश, एंड आई माई सेल्फ आई एम हियर एट बोर्ड मेंबर सिंस लास्ट 2 years। और कुछ पूछना है दोस्तों? Okay. Sir, no, something. What you want to say? Image awards. What is your particular reason for giving the name? जस्ट अ सेकेंड सर, मैं 2 मिनट में ऊपर आया। हमारे लिए कोई नंबर 1, कोई नंबर 2, कोई नंबर 3 नहीं, हमारे लिए सब बराबर है। और जिसने उनकी अपनी फील्ड में एक मुकाम हासिल किया, हम उनको अवार्ड से ऑनर देते हैं। अब आगे जाफ़र भाई करेंगे, बिकॉज मुझे जाना है इस्माइल जी को रिसीव करने। थैंक यू एवरीवन। यस यस। कहना चाहेंगे आज इस शाम सेंटर में आइए, जी। सेंटर में आइए। मैं हाँ, दिख रहा है ना जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे जफर भाई इस शाम को लेकर? सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अगर आप नहीं होते तो कोई इवेंट होता ही नहीं है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूं, और मैं पनाश इमेज अवार्ड में एडवाइज़र कमेटी में हूं, और 3 साल से हम लोग कंटिन्यूस ये शो करते हैं विशाल जी के साथ में। काफ़ी अच्छे लोगों को हम लोग लेकर आते हैं, जो भी एक रिकग्नाइज हैं, जिनका एक नाम है, उनको फेलिसिटेट करते हैं अवार्ड से। ये मर्तबा हम लोगों ने एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया है, जिसके अंदर हम लोगों ने क्वीन लीग्स रखा है, जिसमें जो क्राउन होल्डर है या सब टाइटल जिन्होंने जीता है ब्यूटी पेजेंट में, उन लोगों के लिए भी हम लोगों ने अवार्ड रखा है, और उनको भी आज हम लोग यहाँ फेलिसिटेट करेंगे। तो ऑल ओवर इंडिया से आज ब्यूटी क्वींस यहाँ पे आई है, तो मैं उन सब का भी थैंक्स कर रहा हूँ। जितने भी अवार्ड अभी यहाँ आए हैं उन सब का भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और हमारे जो भी गेस्ट यहाँ पे आए हैं उन सब का भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जी। अवार्ड का यूएसपी क्या है अगर सफर में बात करें इसकी? जी, अवार्ड का बस ये है कि जो भी रिकग्नाइज पीपल है, यानी जिन्होंने अपने अपने फील्ड के अंदर जो भी ये काम किए हैं अच्छे, उनका रिकग्नाइज हो, और उसके साथ में पनास जुड़ता है। पनास
ये है कि एक फैशन आइकॉन है, फैशन आइकॉन के साथ साथ में पर्सनालिटी भी उसके साथ में हम लोग वो करते हैं। तो जो भी लोग यहाँ पे आते हैं उनकी अपनी एक अलग पर्सनालिटी है, एक अपनी अलग पहचान है, उसको रिकग्नाइज करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। जी, थैंक यू। नहीं थोड़ा कम है। Somebody is asking? विजय जी क्या कुछ कहेंगे आज इस अवार्ड शो को लेकर? Yeah, I want to congratulate विशाल कपूर, जिनको हम प्यार से वीके बोलते हैं। तो the show is about to start, but I am seeing that many more people are getting associated, many more brands are getting associated. So इससे लगता है कि I mean the show is getting bigger and better, and एक बहुत अच्छे डिज़ाइनर और स्टाइलिश है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि जो इन्होंने ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, दिस इज़ गोइंग टू एड अप सो मच ऑफ वैल्यू फॉर ऑल द अवॉर्डीज़, एंड दिस अवार्ड इज़ गोइंग टू बी वेरी प्रेस्टिजियस फॉर देम, and they can showcase this award in terms of really achieving something very nice, achieving some great success. To hype them and to felicitate their journey, we just encourage them by giving this Panache Image Awards. Many well-known persons also coming to the event, so something about that. Of course, like we had called many celebrities from Bollywood industry, the pastry industry, the industrialists from all the around the fashion world, and you can say like who's who. So what was the really inspiration to start this kind of an award? I mean, 3 years back, in 3 years you have successfully recognized this award, Yes. conducted this award. What was the reason? See, basically we are here to felicitate them कि उन्होंने अपनी जो जर्नी, जो सक्सेस जो उन्होंने इतने सालों से किया है, उसको हम बढ़ावा देते हुए, उनको मान सम्मान देते हुए ये अवार्ड का हमारा आइडिया था कि इस चीज़ को ऐसे लेकर आएँ। And what about Habib sir, who is Habib, of course, he is one of our advisory board member, and he is associated from first edition onwards, and he is doing a wonderful job. I would like to thank him. Thank you. बहुत अच्छे दोस्त हैं और PIA का थैंक्स बोलना चाहूँगा और उनको विशेष देता हूँ कि इसी तरह से अवार्ड शो करते रहे और हम लोग को बुलाते रहे, मतलब बहुत कामयाबी दे उनको और अच्छे अच्छे अवार्ड इसी तरह करते रहे। आज भी उनके जो अवार्ड्स हैं वो सब सिलेक्टेड अवार्ड हैं और बहुत अच्छे अवार्ड दिए उन्होंने। सर कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए इस अवार्ड की अगर बात करें? आपको इम्पोर्टेंट का कैसा मालूम है कि जब किसी को एक अवार्ड दिया जाता है उसके दिल में कितनी खुशी होती है वो ही जानता है, या आप एहसास कर सकते हैं या वो कर सकता है खाली। और अवार्ड भी उन्होंने बहुत अच्छे दिए हैं और इसी तरह करते रहे, हमारी विशेष है उनके साथ में। विशाल जी के बारे में क्या कहना चाहिए? विशाल भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक ड्रेस डिज़ाइनर हैं, फैशन डिज़ाइनर हैं और बहुत अच्छा उनका रिलेशन है और बहुत अच्छे वो इंसान हैं। आपका एक पेपर भी आता है, मीडिया से भी जुड़े हैं। मुंबई हलचल डेली न्यूज़पेपर मेरा आता है और इस प्रोग्राम में अवार्ड शो में मैं मीडिया पार्टनर भी हूँ और विशाल का फ्रेंड भी हूँ। दिलशाद जी का बर्थडे है, क्या कहना चाहेंगे आप? सर तहे दिल से हैप्पी बर्थडे दिलशाद सर। हैप्पी बर्थडे दिलशाद सर, अभी आने वाला बर्थडे है वैसे तो, पर अभी से ही बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयाँ, और सर वैसे भी बहुत प्यारे हैं, तो नो डाउट सर के साथ सारी खुश विशेष जितनी भी होना चाहिए, सारी गुड विशेस। थैंक्स मैडम आइए। I have to go, मुझे निकलना है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिलशाद भाई का बर्थडे है, क्या कहना चाहेंगे? या बहुत बहुत उनको जन्मदिन मुबारक हो, एंड उनके जो न्यूज़पेपर है उनकी तो हर कोई तारीफ़ करता है, बहुत अच्छे से आर्टिकल्स आते हैं, तो मेरे दिल से दुआ है कि वो आगे और भी कामयाब रहे। एंड आज मैं अपनी अवार्ड के लिए बात करना चाहूँगी कि मुझे बेस्ट बॉलीवुड एस्ट्रोलॉजर का अवार्ड मिला है, एंड मैं टैरो, न्यूमरोलॉजी एंड रेकी हीलिंग्स करती हूँ। तो इस बहाने से मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो विशाल कपूर के जो इवेंट्स होते हैं वो लाजवाब होते हैं, एंड ही इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइंड, ही इज़ अ ग्रेट सेलिब्रिटी फैशन डिज़ाइनर। उसकी काम की तो मैं हमेशा तारीफ़ करती रहती हूँ। एंड अबाउट अगर मैं कहना चाहूँगी कि ये साल 2021 सब मुझसे पूछ रहे हैं कि प्रेडिक्शंस क्या है ये साल की एस्ट्रोलॉजी की, तो मैं ये कह रही हूँ कि ये साल से सब चीज़ें अच्छी होने वाली है। अप्रैल ऑनवर्ड से काफ़ी कुछ सुधार आने वाला है, एंड नवंबर 2021 से सारी चीज़ें वापस से नॉर्मल हो जाएगी। मीडिया इज़ ऑसम,
मीडिया की तो मैं बहुत बड़ी 2021 में मीडिया शाइन करने वाली है एंड जो मीडिया को जो दिक्कतें आ रही थी वो सब निकलने वाली है सेकेंड हाफ ऑफ 2021 से. So, Vishal, I'm really thankful and grateful to you, and I wish you all the best. God bless. Hi, I'm Dr. Sumaya Reshma, and I got this award for Dental Surgeon Par Excellence. Since 20 years, I'm working as a dental surgeon. Along with that, I do some fashion shows, ramp walk. So getting a award from Vishal Kapoor is a dream come true for me. Thank you, and getting Ismail Darbarji, that was such a honorable moment for me. Thank you.